Jai Hind दोस्तों, welcome back to video classes. We have again come up with a beautiful video and new video for you related to vocabulary. First of all, I would like to say thank you for all my YouTube family. As you know, we have completed 5k subscriber and soon we are going to complete the most important part that we are thinking. But before it, as you know, after a long period of time, we are going to upload this video and we are now going to continue our series. You have to just watch all the series till the end. As you know, we are continuing with the English grammar, vocabulary, and there's lots of the series we have continued on the PDA classes. Also with the 9th class geography, you can get each and every concept. And the most important part is that we will provide continuously we have divided days in 3 parts. Single day in 3 parts: morning, afternoon, and evening. And you will get the quizzes. That is the very important part. As you know, the post, as we have the post and the YouTube provide us the post section for each and every channel. So we will provide you the quizzes for English, science, and geography. There's a lots of the quizzes you will definitely get. So that's the most important part for you, and you have to follow that is also. So I hope we have to start our video, and you know that I think this video is gonna be I just forget about it, and we have continued with the series of vocabulary, and these are 10 vocabs, and we try to learn the vocab just by connection. Because if we try to learn any of the vocab by the connection, then we have the linking word in our mind, and our capacity of learning is going to be a good. So you have to just watch this series. So let's get start. So the very first, as you know, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, गॉक. गॉक का मतलब होता है घूरना. इसका मतलब होता है घूरना, घूरना. अब गॉक को जैसे कि हमें मालूम है इसको कनेक्ट करना है. अगर हम कनेक्ट करके लर्न करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा. कैसे लर्न करेंगे? जैसे कि लिखा हुआ है गॉक. गॉक को हम याद कर लें गायक. गॉक गायक, गॉक गायक, गॉक गायक. यानी जो गायक जब गाता है, गायक अच्छा है इसलिए सभी उसे घूरते हैं. जब गायक अच्छा गाता है तो सभी उसे घूरते हैं. जब स्टेज पर कोई खड़ा होता है तो हम सबकी नजरें उसी के सामने होती है. समझ रहे हो ना? तो लिंकिंग वर्ड को अच्छे से कैपेसिटी, मतलब उसको अच्छे से माइंड में रखना. तो गॉक गायक, गॉक गायक, रिपीट करना बस मेरे साथ. गॉक गायक, गॉक गायक. ओके, सो दैट इज द वर्ड, यानी कि घूरना, स्टेयर करना. सिनोनिम इसके देखेंगे समानार्थी, स्टेयर, गेज या रबर नेक. ओके. एंटोनिम इग्नोर, overlook, glance away. Okay, so this has become a phrase. So these all word are the antonym synonym for the particular vocab number. First, gawk. Okay, next vocab we have to move on. The second one we have to learn deterrent. Deterrent हतोत्साहित होना है, रोकना. मतलब कि वो नहीं, परेशान हो जाते हैं किसी चीज से, हम हतोत्साहित हो जाते हैं तो मन मार के बैठ जाते हैं, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है. अपने फिर मन को रोक लेते हैं उस चीज को, कोई काम करने से. तो इसका मतलब वो है. अब deterrent, I hope this vocab we have already discussed in the previous video, 2 or 3 video, because this is a very popular vocab and we commonly see this vocab in most of the exam, CDS, FCAT, ND, and SSC repeated. Okay, so this is most important vocab. Deterrent. Deterrent, rent की date. देख रहे हैं, deterrent date और रेंट. रेंट जो आता है ना, रेंट की डेट मांगने के लिए मालिक आता है. तो रेंट की डेट, रेंट की डेट आते ही हम हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. बहुत सारे मौके हैं इसके लिए. ओके, रोकना भी होता है इसका मतलब. तो डिटरेंट, डेट की रेंट. डिटरेंट, डिट रेंट, डिटरेंट डेट और रेंट रेंट. जब भी डेट की रेंट आती है, मैं जिस मकान में रहता हूँ, मकान मालिक आता है, हाँ भाई पैसे निकालो. अरे मैं टेंशन में यार, कहाँ से अरेंज करेंगे. तो मकान मालिक आता है तो मैं हतोत्साहित, परेशान, निराश हो जाता हूँ. आप भी फील करते होंगे एज अ स्टूडेंट. नेक्स्ट सिनोनिम आप देख सकते हो, हिंड्रेंस, रुकावट, ऑब्स्टिकल, रेस्ट्रेंट. अब जब आप हतोत्साहित हो जाते हो, देखो उसी से कनेक्ट है, नहीं कि आप ये कैसे हो जाता है. मतलब जो इंग्लिश है ना, उसमें जो आपके जितने भी वोकैब होते हैं, वो जितने भी वोकैब होते हैं, तो उन सबके बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि इसका ये, इसके और भी कई हो सकते हैं. ये मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर वोकैब के लगभग 2000 3000 भी उसके सिनोनिम और सिमिलर वर्ड हो सकते हैं. तो ऑब्स्टिकल, रेस्ट्रेंट. एंटोनिम स्टिमुलस, अट्रैक्शन, encourage. So this is all antonym synonym for this vocab, and these are very important. You have to just repeat and revise, and you definitely get in your mind. नेक्स्ट ल्यूसिडिटी. ल्यूसिडिटी का मतलब स्पष्ट करना, क्लियर जैसे बोलते हैं. ल्यूसिडिटी को हम कैसे याद करते हैं, ये भी वोकैब शायद मैं पहले आपको रिपीट करा चुका हूँ. ल्यूसिडिटी का हम लर्न करेंगे
लूसी, लूसी दीदी स्पष्ट बोलती हैं। ल्यूसिडिटी, ल्यूसी, देखना ल्यूसिडिटी, लूसी और डिटी दीदी, लूसी दी, लूसी दी, इसी से लर्न कर लो। लूसी और दी, जो लूसी दी है ना हमेशा साफ बोलती है, डरती नहीं किसी से, कोई भी बात होगी एकदम स्पष्ट बोल देंगे, यूं बस रिपीट करो, लर्न हो जाएगा, खत्म। तो ल्यूसिडिटी, लूसी दीदी हमेशा स्पष्ट और साफ बोलती हैं। सिनोनिम क्लैरिटी, क्लियरनेस और प्रिसिशन। नेक्स्ट एंटोनिम अनक्लियर, कंफ्यूजन, एम्बिगिटी। ओके, तो एम्बिगिटी GUITY लिखा है, तो ये है आपका ल्यूसिडिटी, स्पष्ट करना। तो अनक्लियर उसका ऑटोमेटिकली एंटोनिम बन जाता है, अपोजिट वर्ड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं जिसका नाम है आपका कैलामिटी। कैलामिटी की हम बात करें तो इसका है संकट, समस्या। तो कैलामिटी संकट, समस्या होता है। तो लर्न कैसे करेंगे हम इसका, आप देख सकते हो, काली मिट्टी पर संकट है। तो कैलामिटी काली मिट्टी, देख रहे ना, कैलामिटी काली और मिट्टी, मिट्टी काली मिट्टी, कैलामिटी काली मिट्टी, काली मिट्टी पर इस समय संकट है, उसकी जो पोषक मात्रा है ना वो खत्म होती चली जा रही है, मलन्यूट्रिशन बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किसानों को फेस करनी पड़ रही है। तो कैलामिटी काली मिट्टी पे बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल अभी रिसेंटली बहुत चल ही रहा है तो इसलिए मैंने उससे बना दिया। तो कैलामिटी काली मिट्टी पे बहुत ज्यादा संकट है, परेशानी है। सिनोनिम डिजास्टर, ट्रेजेडी, कैटास्ट्रॉफ। एंटोनिम बेनिफिट, प्रॉस्पेरिटी, एडवांटेज। तो ये होते हैं आपके एंटोनिम सिनोनिम इस वोकैब के लिए। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एजॉल्ट। एजॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। तो एजॉल्ट से रिलेटेड कई वोकैब होते हैं। Hopefully, if you go through the reading portion of literature, then you definitely come to know about this vocab assault. तो assault का मतलब होता है आक्रमण करना, और इसको कैसे लर्न करेंगे, एज अब आक्रमण के लिए तैयार है। गधों से आक्रमण किए जा रहे हैं, मैंने बना दिया है बस। ओके, वो एज इट इज लिखा था उसी से बना दिया। तो एज मैंने कि अब हमारे जो एज हैं वो तैयार है आक्रमण के लिए, ठीक है ना। तो डंकी हमारे तैयार है, तो उससे लर्न करना है आपको, बस इतना ही है। अटैक, वायलेंस, एब्यूज, वही ना आक्रमण करना। देखो एब्यूज भी आता है, अब जरा सोचो, एजोल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, और इसमें क्या लिखा है एब्यूज। तो कैसे यार, एब्यूज का मतलब गाली देना, तो इसका सिनोनिम कैसे आएगा, मैं कह रहा हूँ समानार्थी वर्ड सिमिलर आते हैं, और इंग्लिश में कहीं ना कहीं अगर आप सोचो ब्रॉडली कैटेगरी है, तो ये एब्यूज डेफिनेटली इसका सिमिलर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट सिनोनिम की बात करें, सॉरी एंटोनिम की, डिफेंस, पीस, हार्मनी। बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होगा भाई, आप अटैक करोगे तो उसको हम डिफेंस करेंगे, पीस करेंगे, हार्मनी, भाईचारा बनाकर रखो, लड़ाई क्यों करते हो यार, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला वो कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान या तिरस्कार करना। कंटेम्प्ट होता है ना, जब आपका कहीं अपमान कर दिया जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मतलब कि आपके साथ बदतमीजी का व्यवहार किया जाना होता है, तो अपमान तिरस्कार होता है, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट कनेक्शन देखेंगे, कंटेम्प्ट कौन से टाइम, कौन और टेम्प्ट टाइम, कौन से टाइम पर आपका अपमान हुआ हमें बताओ, हम उसका बदला जरूर लेंगे, तो ये पूछा जा रहा है। तो कंटेम्प्ट समझ में आया, कंटेम्प्ट बस अच्छे से देख लेना कि कनेक्ट हो जाए, ये इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्ट कौन से टाइम आपका तिरस्कार अपमान हुआ, बस हमें बता, हो जाएगा, हम उसका बदला ले लेंगे। सिनोनिम डिसडेन, स्कॉर्न, मोकरी। समझ में आया, तो डिसडेन, स्कॉर्न, मोकरी ये होता है आपका अपमान करना किसी का। एंटोनिम रिस्पेक्ट, एस्टीम और रिगार्ड, ठीक है ना। तो इसका रिस्पेक्ट, एस्टीम, देखो यहाँ पे अपमान होता है तो उसका क्या होगा, इज्जत देना होता है। एस्टीम मैंने बताया था कि पहली समय जब एस्टीम इंजन आए थे तो सभी उसके रिस्पेक्ट करते थे कि एस्टीम इंजन उस समय कहाँ थे, तो इसलिए उसको याद कर लो, एस्टीम स्टीम से ऐसे याद कराया था मैंने। नेक्स्ट कॉ को देखो, सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला वो वाला था। तो कॉ को हम कह सकते हैं काऊ से, काऊ को देखा ना, यहाँ पे डब्ल्यू लगा दो तो उससे याद हो जाएगा, कॉ काऊ। गाय कैसा जानवर है, बहुत भोला वाला, इसलिए तो हम उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और उस जानवर को प्रति एक आस्था रखते हैं। को काऊ, काऊ क्या है, काऊ बहुत ही सीधा साधा जानवर है, तो बहुत ही सीधा साधा अच्छा जानवर है। सिनोनिम शाय, डिम्योर, मोडेस्ट, रिजर्व्ड। एंटोनिम की बात करें, फॉरवर्ड, आउटगोइंग, assertive. So these all are the vocabs for antonym synonym for the cow. नेक्स्ट आपका देखते हैं डाइन। डाइन को देखो, कोलाहल मचाना। डाइन को मैं पहले भी याद कर चुका हूँ शायद, डिसडेन से, ये ना इसमें कहाँ गया ये वाला वोकैब क्या था यहाँ पे, ये डिसडेन टाइप कुछ ऐसा। हाँ, कोलाहल मचाना, डराना किसी को, नॉइज मचाना। डायन मतलब डायन, डायन ने सारे गांव में कोलाहल मचा रखा है। कहते हैं गांव में सबसे ज्यादा डायन का खतरा रहता है, भूत पिशाच चुड़ैल का खतरा रहता है। तो क्या है, डायन 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 डायन, रिपीट करना है मेरे साथ। देखो बैठने से नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है कि देखो वोकैब का यार हम रट तो सकते नहीं है, एक ऐसा तरीका है जो शायद आपके दिमाग में कई एक लंबे समय तक, आपके एग्जाम तक आपका साथ दे, शायद 2-3 बार लर्न करने से शायद डेफिनेटली है, आप जब करोगे तो डेफिनेटली आपको लर्न रहेगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन याद आएगा, तो आप टिक लगा दोगे, ये है।
बस इतना ही पर्पज है, मैंने बनाया है उसी को लेकर। तो डायन 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 ने सारे गांव में हल्ला मच रखा है, कोलाहल मच रखा है। सिनोनिम नॉइज, क्लेमर, अपरोर। समझ में आया ना। एंटोनिम की बात करते हैं, साइलेंस, क्वाइट और पीस। तो ये रहा आपका डाइन का। नेक्स्ट आपका शेयर। शेयर का बोले झुलसा देना, है ना, वो पूरी तरीके से झुलस गया है, झुलसा देना यानी कि उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो बर्न, स्कॉर्च, जल जाना है। जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, हद से ज्यादा आया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो वो कहते हैं कि गर्मी में झुलस गया, तो उसको बोलते हैं आप। तो क्या लिखा, सियर, शर ने तुम्हारे सिर को कड़ी धूप में झुलसा दिया। तो सियर, सर ने तुम्हारे सिर को कड़ी धूप में झुलसा दिया। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं शेयर, शेयर है झुलसा देना। ठीक है, तो सर ने आपको पनिशमेंट दी होगी, आपने पढ़ाई नहीं की होगी, सर ने कहा जा धूप में खड़ा हो जा, आप धूप में खड़े रहे ऐसे करके, तो आपका सिर ना पूरी तरीके से झुलस गया। आपने कहा सर देखो मैं स्कॉन हो गया, स्कॉर्च हो गया। वर्न, स्कॉर्च, ब्लेज। स्कॉर्च आपका स्पेशली गर्मियों में करते हैं, चिपचिपा जो मौसम होता है ना, कि सनलाइट, बारिश हुई, सनलाइट आ गई, तो वो मौसम जो होता है, लगता है ना कि बहुत ज्यादा यार पसीने आ रहा है, बेकार लगा जैसे समय मुझे लग रहा है, तो उसको स्कॉर्च बोलते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम कूल, सूथ या क्विंच। So these all are the boxes for seer. Next, बेडीजन। बेडीजन भड़कीले कपड़े पहनना, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव लेडी। यू कैन से कि जो बेडीजन आप वहां यूज करते हो, ऐसा वॉकअप जहाँ पे जो लेडी अट्रैक्ट करती है सबको, अट्रैक्टिव कपड़े पहनना और वो मेकअप वगैरह करके रहते हैं ना, तो वो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये स्पेशली वॉकअप उसके लिए यूज करते हैं। वो लड़की बड़े नाज से भड़कीले कपड़े पहन, बेडीजन बड़े नाज से, वो लड़की बड़े नाज से ऐसे कपड़े पहन के आई है, ऐसे बोल देते ना जब कहीं पे अच्छा सा कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, नॉर्मल सा प्रोग्राम हो और फॉर्मल चीजों में आप कोई अलग से कपड़े पहन के जाओ। सिनोनिम की बात करें, एडॉर्न, डेकोरेट और बेडेक। अब देखो, मैं बोला ना अट्रैक्ट करना, डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। जब लड़कियां कपड़े पहनती तो अपने आप को सजाती हैं, डेकोरेट करती हैं, ऐसी इसलिए इसका शब्द आया, सिनोनिम आया डेकोरेट। अब आप ये ना सोचे कि ये डेकोरेट कैसे आया, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। आप सोचोगे तो उसमें बहुत सारे सिमिलर वर्ड आएंगे, उससे जो मिलते जुलते हैं, तो वो सब आ जाता है इसमें। बेडीजन, एडॉन। अब एडॉन क्या होता है, कपड़े पहनना। अब देखो इसमें वो भी आ जाता है, ठीक है ना। बेड, क्योंकि कपड़े पहन के हम अपने आप को सजाते हैं, तैयार करते हैं, बेस्ट से बेस्ट ब्रांडेड टी शर्ट पहनेंगे, अच्छे लगेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, तो वो क्या है, बेडीजन, वो कपड़े पहनना होता है, अट्रैक्ट करते हैं हम सबको। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रेप, सिंप्लीफाई, वेयर। सो दीज ऑल आर द vocabs and we have completed with a beautiful manner। और इसके साथ हमने ये भी वीडियो खत्म किया। जैसे कि आपको मालूम, बहुत ही जल्दी, जिस प्रकार से अभी तक थोड़ा सा डिले हो रही है चीजें, लेकिन अब हम बहुत ही जल्दी एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर टाइमिंग में ये सब बताकर बहुत ही जल्दी हर वीडियो लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। थोड़ा सा समय और बाकी आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू। आपने 5K पूरे किए, हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, क्विजिस सेक्शन जो हम अपलोड कर रहे हैं आपको मॉर्निंग में, आपको इवनिंग में, आपको आफ्टरनून में, 3 पोर्शन में मिल रहा है। ये पोर्शन बिल्कुल ना छोड़ें, ये पोर्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। CDS, NDA, SSC, ये सब FCAT, इस सब लेवल से हम वोकैब ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स ले लो, और आपके जो भी और भी चीजें, एंटोनिम्स आते हैं, और भी आपके अरेंज वर्ड आते हैं, ये सब एरर वगैरह सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और शाम को आपको पूरा आपको GS पोर्शन मिलेगा, तो बिल्कुल ना छोड़ें, जरूर लगाएं, बहुत ही फायदा होगा। जाके देखें, मजा आएगा। पोस्ट पे आपको मिलता है, तो जो कम्युनिटी होती है ना, उस पर हम अपलोड करते हैं शाम सुबह, मेहनत करके आप ही के लिए। अच्छी खासी लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छा भी है। और कोई क्वेरी हो उसमें आप बस कमेंट कर दो, विद इन 24 आवर हम रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसके आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।